So, friends, this is Professor Amit Nerurkar, and well and good. We are here today for the subject of artificial intelligence and soft computing. Now, AI है क्या? जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई आप अनम्यूट करके आप आंसर देना चालू करो. जब मैं कहता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें एग्जैक्टली क्या है वो. ठीक है, जैसे ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस इज हाफ एआई हाफ एससी फॉर कंप्यूटर्स एंड इट इज फुल एआई फॉर आईटी. पर एआई है क्या? व्हाट एग्जैक्टली इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? सो कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है व्हाट एग्जैक्टली इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? व्हाट इज एआई? एनीवन? Uh, we यस. train we train machine to learn from the surroundings. Extremely good. We train machine to learn from the surroundings. Yes, absolutely a right answer. Any other definition of AI? So uh, AI, ab- yeah, tell me. ability of the machine to perform some operation without we being programming them specifically. Yes, it is ability of a system to perform some operation without any kind of human intervention. Right, वरुण, यही कहना चाहता है ना? Yes, yes. हाँ. तो अभी एआई का जस्ट फर्स्ट लेक्चर है, एंड देन व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज, सिंस बहुत लोग को लगता है कि एआई थियोरेटिकल है, तो बॉस एआई थियोरेटिकल नहीं है. एआई में बहुत सारे सम्स है. ठीक है, वेदर इट्स ओनली एआई और एआई एससी. अगर एआई एससी अगर लोगे तो भर भर के प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. ठीक है, सो वेरी लेस थियरी एंड ओनली चैप्टर नंबर 1 में ज्यादा थियोरेटिकल कंसेप्ट है. बट देन आफ्टर चैप्टर नंबर 1 एंटायर थिंग व्हाट एवर यू सी आर algorithms and sums, algorithms and sums, algorithms and sum. And when we are entering into soft computing for computers, purely sums. ठीक है, एंड एआई का रिमेनिंग चैप्टर्स भी सम्स ही है फॉर आईटी पीपल. So anyway, when I'm starting the first basic chapter, introduction to AI, my question is, I need to give a tribute to those guys who have contributed in building up a AI system, in making the realization to the society that भाई सिस्टम भी ह्यूमन जैसे सोच सकते हैं. And the journey starts with John McCarthy. John McCarthy has coined this term known as AI, artificial intelligence. But it further went, the tribute, if you need to give to AI, it further went to a person known as Alan Turing. Alan Turing was the first citizen who have written in his research paper कि machines भी सोच सकते हैं. Further, it goes to Minsky, a very famous personality in the world of machine learning, जहां हम लोग मशीन को बात करने में मजबूर करते हैं. ठीक है, देन मैं बात कर रहा हूं अबाउट द नेक्स्ट एंटिटी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर conceptualizing AI is nothing but I would talk about Alan Neville and Herbert Simon. तो ये सब ultimately what it led was the AI. So इन लोग को बोला गया है, जॉन मैककार्थी is one of the founding fathers of AI, together with Allen, together with Minsky, together with Neville and Simon. तो AI ये जो टर्म है ये कॉइन किया हुआ है बाय दिस जेंटलमैन. ठीक है, द जेंटलमैन नेम्ड जॉन मैककार्थी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज एआई इज माय क्वेश्चन. सो एआई क्या है? सो एआई जो है, इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टर्म व्हिच इज कॉइन्ड बाय जॉन मैककार्थी. AI is nothing but a process of making the system to work as a human being. The process of imparting a human-like brain, human-like knowledge into a machine is actually known as AI. तो जब मैं बात कर रहा हूं about AI, it is nothing but we are trying to make our machine to simulate like the human intelligent process, the human thinking process.
तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट एआई, ये बेसिक एआई का डेफिनेशन हो गया। जब मैं अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग एआई, बट देन उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम बताने वाला हूं कि वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट एआई विच इज अ सिमुलेशन, आई वांट टू इनिशियली इंट्रोड्यूस the basics of AI through my slides and then I would be shifting to the board. So जब मैं बात कर अबाउट AI, your AI is actually made up of 3 components, ठीक है? perceive, process and action. So कोई मुझे बता पाएगा perceive का मतलब क्या है? What do you mean by perceive? perceive का क्या मतलब होता है? Yes, anyone unmute and tell me what do you mean by perceive? हम लोग perceive करते हैं मतलब क्या करते हैं? Observe. ठीक है, एग्जैक्टली, वी ऑब्जर्व एंड आई कैन से वी टेक इनपुट। ठीक है, हम लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के लिए भाई जो आपने इनपुट परसीव किया है, जो इनपुट लिया है, उसको पहले इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट करने के बाद देयर इज द रीजनिंग प्रोसेस जो फाइनली डिसाइड करेगा कि व्हाट माय एक्शन शुड बी, एंड दैट एक्शन इज नथिंग बट द आउटपुट व्हिच इज गिवन टू द रियल वर्ल्ड। तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट आई वांट टू मेक यू अवेयर इज, जो आपको डायग्राम दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज नथिंग बट ऑटोमेटिक सॉइल वाटरिंग सिस्टम या ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम। इसके अंदर ना एक सेंसर डाला हुआ है। तो सेंसर का काम है परसीव करना। परसीव करके इधर एक कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोलर का काम है परसीव करके इंटरप्रेट करना कि इनपुट क्या है, और इंटरप्रेट करने के बाद इट विल टेक अ डिसीजन। डिसीजन क्या रहेगा? ये जो एक्चुएटर है ना, ये वाटर पंप है, ये वाटर पंप चालू करेगा। ठीक है, बट देन वाटर पंप कब चालू करेगा, उसका एक रीजनिंग होगा, और दैट रीजनिंग वुड बी एंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंटरप्रिटेशन। तो एक्शन क्या रहेगा? एक्शन वुड बी नथिंग बट द आउटपुट, एंड इधर जो इनपुट लेता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसर, और जो आउटपुट देता है ना उसको हम लोग कहते हैं एक्चुएटर, और जो ये प्रोसेसिंग करता है उसको हम लोग कहते हैं कंट्रोलर। तो इसका अगर एक ब्लॉक डायग्राम में आपको बताऊं, दिस इज नथिंग बट द सॉइल मॉइस्चर सेंसर विच इज डिप्ड इनसाइड द सॉइल। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर परसीव करेगा एनवायरमेंट, और जो भी मॉइस्चर वैल्यू है वो मॉइस्चर वैल्यू सेंड करेगा टू अ कंट्रोलर। कंट्रोलर इंटरप्रेट करेगा, एंड उसको जैसे प्रोग्राम किया उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा कि भाई ऑटोमेटिकली वाटर पंप चालू करना है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली पानी फ्लो होगा या नहीं होगा। ठीक है, दैट डिसीजन वुड बी टेकन बाय दिस कंट्रोलर। सो दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपके पास डिस्कस किया है, द एप्लीकेशंस ऑफ एआई। ठीक है, वैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं एआई का, एंड और एक एग्जांपल अगर मैं आपको एआई का दूं, आई विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग नोन एज अ स्मार्ट अम्ब्रेला। कोई भी डिवाइस को जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना स्मार्ट, दैट मीन्स इट हैज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बट आज आप अगर देखोगे आपका जो इंटेलिजेंस है, दैट इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन, it is not only based on the controller or how the system thinks, but it is also based on how your sensor is communicating your data to controller, and your controller is giving data to an actuator, and hence AI के साथ एक नया टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आया which you might be aware of is IoT. So IoT, that is इंटरनेट ऑफ थिंग्स, which is going towards बहुत ज्यादा ऑटोमेशन पे फोकस कर रहा है। तो IoT का ऑटोमेशन कैसे होता है? इज यूजिंग AI। तो स्मार्ट अम्ब्रेला का काम क्या है, मैं आपको बताता हूं। व्हाट इज दिस स्मार्ट अम्ब्रेला? स्मार्ट अम्ब्रेला सेंस करता है कि जो अपना ओनर है, वो जो यूजर है, वो घर से निकल रहा है, और उस स्मार्ट अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है ना, उस हैंडल के ऊपर एक एलईडी लगा दी है। तो ये एलईडी क्या करेगा? जैसे उसने सेंस किया कि भाई अपना यूजर बाहर निकल रहा है, वो वेदर फोरकास्ट को पूछेगा भाई आज बारिश होगा, और हाँ, तो वो जो एलईडी है ना वो ब्लिंक करना चालू होगा, एंड वो एलईडी ब्लिंक करना चालू होगा तो आपको रिमाइंड करेगा अम्ब्रेला कि भाई मेरे को लेके जा, पॉसिबली क्यों? क्योंकि आज बारिश हो सकता है। सो अगेन दिस इज काइंड ऑफ एआई। सो इसमें सेंसर क्या था?
इसमें प्रोसेस क्या था, इसमें एक्शन क्या था? तो सेंसर वाज द यूजर गोइंग आउट, व्हाट वाज द प्रोसेस, कॉलिंग द वेदर फोरकास्टिंग सर्वर, टेकिंग द अपडेट अबाउट द वेदर फोरकास्ट, टेकिंग द अपडेट अबाउट आज का वेदर क्या है, एंड देन द एक्शन इज वेदर टू ब्लिंक और नॉट टू ब्लिंक। तो आपका जो एआई का कंसेप्ट है ना, एआई एंटायरली रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग। तो फर्दर जब मैं अब बात कर रहा हूं अबाउट एआई, एआई के 4 अप्रोचेस है, ठीक है। बेसिकली वो 4 अप्रोचेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है। सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। एंड सिस्टम दैट थिंक लाइक मशीन, उसको हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग अप्रोच। तो ये दोनों जब मैं एक साथ मिलाऊंगा तो ही मेरा एआई बनेगा, ठीक है। क्योंकि एआई में आजकल बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जरूरी है, वो है ना कि ओनली थिंकिंग लाइक ह्यूमन बट ऑल्सो हैविंग दिस इमोशनल टच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में, ठीक है। अगर आपने देखा था रोबोट 1.0, जिसमें वो जो चिट्टी रोबोट बनाया था, उसमें पहले उसको कोई इमोशनल स्टेट नहीं था, बट देन उसके अंदर हम लोग ने न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंट करके, अगर आप देखोगे, उसको फीलिंग्स आना चालू हो गया। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? अगेन दिस इज मेड पॉसिबल विद दिस एआई। सो एआई के 4 अप्रोचेस है जो बेसिकली 2 कैटेगरीज में जाते हैं, एक है साइकोलॉजिकल अप्रोच और एक है इंजीनियरिंग अप्रोच। So what is psychological approach? The machine that is thinking like human. And what is engineering approach? The machine which is the system that is thinking like a machine. So now चलो मुझे फटाक से कोई तो अनम्यूट करके मुझे एक वर्ड का मीनिंग बताओ, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है कि what do you mean by this word known as a rational? कोई बता पाएगा what is the meaning of the word rational thinking? Anyone, let's be interactive, interact करके मजा कर करके आगे सब्जेक्ट को लेके जाएंगे, बट इंटरैक्टिव रहोगा। सो कोई बता Being पाएगा रैशनल practical. थिंकिंग? ओके, बीइंग प्रैक्टिकल। एनी अदर डेफिनेशन फॉर रैशनल थिंकिंग? एग्जांपल दे पाएगा कोई रैशनल थिंकिंग का? एनी एग्जांपल ऑफ रैशनल थिंकिंग? आपको पता है सिस्टम, मैं कब बोलूंगा सिस्टम इज बीइंग प्रैक्टिकल? जब उसको क्या दिख रहा है? गोल। एंड वो गोल अचीव करने के लिए वो कुछ भी करता है, इट डज एनीथिंग टू अचीव दैट गोल। तो टू अचीव द गोल वो जो कुछ भी करता है ना, जो कुछ भी करता है, ठीक है, इट इज नॉट कंसिडरिंग कि भाई ये डिसीजन के वजह से और क्या नुकसान होगा, ये डिसीजन के वजह से मेरा यूजर खुश होगा क्या, ये डिसीजन के वजह से क्या मेरा यूजर मुझे नेगेटिव फीडबैक देगा। तो व्हेन इट इज कमिंग टू रैशनल थिंकिंग, तो गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, रैशनल थिंकिंग का मतलब क्या है? बीइंग अ प्रैक्टिकल बट हैविंग नो इमोशंस, ठीक है। प्रैक्टिकल ओनली टू रीच कि भाई मुझे गोल मीट करना है। इन अ कार रेसिंग, if your car has decided, or if it's autonomous car and decided कि एम मेरा गोल अचीव करना है, रिगार्डलेस में गाड़ी को कैसे भी चलाओ, मेरे गाड़ी को कितना भी डैमेज पहुंचे, वो आगे जाके जीत के रहेगा, बट देन दैट इज ऑफ नो यूज। सो आपको एक थोड़ा सा ह्यूमन टच लाना पड़ता है, एंड वो रैशनल थिंकिंग में डायरेक्टली नहीं मिलता है। सो यहां पे मैंने आपको जैसे बोला कि 4 डोमेन जो 2 डोमेन्स में डिसाइड किए गए, सिस्टम दैट थिंक्स लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट थिंक रैशनली, सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंड सिस्टम दैट एक्ट रैशनली। तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। कैन यू टेल मी ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? जो मैंने 2 क्लासिफिकेशन बताया, ये कौन से क्वाड्रेंट का है, ये कौन से क्वाड्रेंट का है? चलो फटाफट बोलो, दिस इज ऑफ साइकोलॉजिकल या इंजीनियरिंग? ये वाला Psychological. वेरी गुड, दिस इज साइकोलॉजिकल एंड दिस इज इंजीनियरिंग। तो आपको अगर पूछा एआई की अप्रोचेस, तो अगर आप देखोगे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एआई के अप्रोचेस, आप अगर देखोगे एआई के बेसिक अप्रोचेस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज व्हिच आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड इंजीनियरिंग अप्रोच, ठीक है। सो जब मैं आगे बढ़ रहा हूं अबाउट एआई अप्रोच, मैंने अभी तक क्या क्या बताया? मैंने अभी तक आपको बताया कि
एआई का कंसेप्ट क्या है? एआई मतलब इम्पार्टिंग अ ह्यूमन लाइक ब्रेन नॉलेज सिस्टम इनटू द सिस्टम, ह्यूमन लाइक ब्रेन नॉलेज इनटू द सिस्टम। अभी व्हेन आई से एक्टिंग ह्यूमनली, उसका क्या मतलब है? व्हेन आई से एक्टिंग ह्यूमनली, तो इसके लिए ना आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा। एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट बनाया था, उस टेस्ट का नाम था ट्यूरिंग टेस्ट। तो व्हाट इज दिस ट्यूरिंग टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट इज, ये है ना, ये एक्चुअली जो आपका इंटरोगेटर है, दैट इज योर टेस्टर, एंड दैट टेस्टर इज सेंडिंग क्वेश्चंस टू अ डिवाइस। नाउ the interrogator is should not be aware whether the reply is coming from a computer or whether the reply is being given by the particular user। तो जैसे यहां पे क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन करने के बाद एग्जैक्टली क्या होता है, क्वेश्चन करने के बाद आपको मिलता है आंसर, इधर भी आपको मिलता है आंसर। जो आपका इंटरोगेटर है ना, वो इंटरोगेटर शुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ये रिप्लाई कंप्यूटर से आया है या ये रिप्लाई ह्यूमन से आया है। इतना वो आउटपुट प्रिसाइज होना चाहिए कि योर टेस्टर इज एक्चुअली नॉट एबल टू रियलाइज भाई ये डेटा ना कंप्यूटर ने भेजा है, नहीं ये डेटा यूजर ने भेजा है। सो यू नीड टू मेक योर सिस्टम सो मच ट्रेन कि इन सच अ वे दैट उसको पता होना चाहिए कि हर ऐसे क्वेश्चन पे इस यूजर का क्या जवाब देगा, और वही जवाब ये कंप्यूटर देना चाहिए, और जब जवाब इसको मिलेगा, इसका जवाब और इसका जवाब इतना सिमिलर होना चाहिए कि इट शुड हैपन दैट द इंटरोगेटर इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर द रिप्लाई इज कमिंग फ्रॉम अ मशीन और वेदर द रिप्लाई इज कमिंग फ्रॉम ह्यूमन। एंड दिस इज नथिंग बट ट्यूरिंग टेस्ट। तो गाइज, आपको किसी को भी ट्यूरिंग टेस्ट में कुछ डाउट है? किसी को भी कुछ भी ट्यूरिंग टेस्ट में डाउट है? एनी वन ऑफ यू? क्या मैं आगे बढ़ू? ओके विराज, थैंक यू। तो अभी जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट, आप अगर देखोगे एक्टिंग रैशनली, तो एक्टिंग रैशनली क्या है ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है? तो एक्टिंग रैशनली क्या है इसका थोड़ा हम लोग डिटेल में बाद में देखते हैं। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एआई फाउंडेशन, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एआई फाउंडेशन। बट उससे पहले मैं सिर्फ कब कब से बड़ी करते जा रहा हूं, तो जरा ना एआई का डेफिनेशन जरा अपने नोटबुक में लिखो। सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नोटबुक में आप हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन, नोटबुक में आप हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन, और नोटबुक में हेडिंग देने के बाद आप लिखिए, नोटबुक में हेडिंग देने के बाद आप लिखिए डेफिनेशन ऑफ एआई। डेफिनेशन ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the process, artificial intelligence is the process of simulating, artificial intelligence is the process of simulating human like brain, of simulating human like brain capability into system, human like brain capability into system। एक लाइन छोड़ के आप अपने नोटबुक में लिखिए, हु कॉइंड द टर्म एआई।
who coined the term AI? Who coined the term AI? आप इसको मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा. Who coined the term AI? Mark this as important for your viva. ठीक है, whether it's comms या IT, mark it as important for your viva. And the answer is John McCarthy. John McCarthy. John McCarthy. स्पेलिंग देख लीजिए. Okay. Next you write in your notebook, एक लाइन छोड़ के लिखो, बेसिकली AI works on following 3 principles. परसीव, जो परसीव करता है वो सेंसर है. तो ये आप फटाक से लिख लीजिए. दिस इज 2.1, दिस इज 2.2. परसीव मतलब इनपुट लेना, प्रोसेस मतलब उसके ऊपर कुछ एनालिसिस करना, कुछ प्रोसेस करना एंड आउटपुट देना. एंड वो आउटपुट रियल वर्ल्ड को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ द एक्चुएटर. with the help of the actuator. Is this clear, everyone? Yes, sir. Okay. So, for example, automatic plant watering system. Automatic plant watering system. Now, can you tell me ये ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम में अज्यूम करो ये सॉइल है, इसके अंदर आप एक सेंसर डालोगे. ठीक है, ये जो सेंसर है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस सेंसर ऑल अबाउट? दिस सेंसर इज नोन एज moisture sensor. This moisture sensor takes the value and gives it to the controller. Now controller has some program जिसको मैं कहता हूं रूल बेस, कि वो चेक करेगा कि सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है. मॉइस्चर कंटेंट अगर 90% एंड अबाउ मतलब ओके, योर सॉइल हैज इनफ वाटर. पर अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है तो आपका जो कंट्रोलर है ना, वो क्या करेगा? कंट्रोलर वुड बी ऑपरेटिंग योर वाटर पंप. ठीक है, सो दिस वाटर पंप एग्जैक्टली क्या करेगा? दिस वाटर पंप वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट द वाटर एंड यहां से पानी जाएगा. तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज द वाटर इज गेटिंग सप्लाइड. तो ये जो डिवाइस है, पॉसिबली आपको पता रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं स्प्रिंकलर. सो आपका इनपुट क्या था? मॉइस्चर. वो किसको गया? कंट्रोलर को. कंट्रोलर के पास एक रूल बेस है,
उसके हिसाब से उसने डिसीजन लिया वेदर वाटर पंप को ऑन करना है या वेदर वाटर पंप को ऑफ करना है. तो दिस वाटर पंप इज एक्चुअली एक्टिंग एज योर एक्चुएटर. तो इज द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेंसर, कंट्रोलर एंड एक्चुएटर क्लियर एवरीवन? ठीक है. एंड एक्चुएटर इज नथिंग बट द एंटिटी विच टेक्स एन एक्शन, एंड मॉइस्चर सेंसर इज नथिंग बट द एंटिटी दैट एक्चुअली क्या करेगा? perceive. एग्जैक्टली. तो ये करेगा परसीव. इज दिस क्लियर एवरीवन? एवरीवन. और ये जो आपका कंट्रोलर है ये करेगा आपके डेटा को प्रोसेस. पहले इंटरप्रेट करेगा और फिर इट विल टेक अ प्रॉपर डिसीजन बेस्ड ऑन दैट इंटरप्रिटेशन. तो आपने एग्जाम्पल लिखा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. ये फटाक से डायग्राम ड्रॉ कर लो. कंप्लीट दिस डायग्राम. कंप्लीट दिस डायग्राम फटाक से. Shall we proceed? Okay. ओके. जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा फर्स्ट चैप्टर है, थोड़ा सा इट इज गोइंग into a theoretical domain, but then after the introduction I'll be switching to what kind of sums we would be looking at. तो हम लोग थोड़ा sums and agents के बारे में भी हम लोग understand करेंगे. So everyone please make sure that you're taking it down because it is, but obviously what I generally give a statement is by end of the lecture, or I would say by end of the course, everything would be there in your notebook. Everything would be there in your notebook. So well, to go ahead, I want a signal from majority of you. So unmute and give the answer because I don't want anyone missing it. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Yes. So next heading दीजिए आप. What is an AI approach? And mark, this is again important for your Viva. What is an AI approach? What is an AI approach? AI का बेसिक अप्रोच कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? बेसिक. एक्चुअली अगर देखने जाओ AI का जो बेसिक अप्रोच है ना वो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है. सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट थिंक रैशनली, सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट एक्ट रैशनली. सो वो थिंकिंग इज एक्चुअली क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर कैटेगरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड इंजीनियरिंग अप्रोच. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक. Number 1, psychological approach. Number 1, psychological approach.
उसमें आप लिखो नंबर 1, सिस्टम दैट थिंक लाइक ह्यूमन, सिस्टम दैट एक्ट लाइक ह्यूमन. System that think like human, system that act like human. System that think like human, system that act like human. And second, engineering approach, system that think rationally, and second, system that act rationally. System that think rationally, and number 2, system that act rationally. System that think rationally, system that act rationally. आपको आई बिलीव रेफरेंस समझा है ना. रैशनली मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड रैशनली? यू आर ओनली कीपिंग इन माइंड दिस. क्या है ये? मुझे बस इधर पहुंचना है. मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं क्या करूंगा, आई हैव नो आइडिया. आई एम लाइक आई हैव टू रीच हियर. ठीक है. तो गाइस आपको पता है एल्गोरिदम्स में या एडवांस एल्गोरिदम में यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस अप्रोच. कोई एग्जाम्पल रहेगा ये ग्रीडी अप्रोच का? एनी एग्जाम्पल दैट यू आर सॉल्व यूजिंग ग्रीडी अप्रोच? रिमेंबर दिस प्रॉब्लम. Yes or no? Knapsack. Yes. Yes, sir. तो ग्रीडी अप्रोच क्या था? So maximizing your inventory. Exactly. Materials can. Yes. उसका अप्रोच था कि मैं इट वाज ग्रीडी. मतलब एक्चुअली वो ग्रीडी अप्रोच है कि मुझे इधर पहुंचना है. उधर क्या अप्रोच था? मैक्सिमाइजिंग द इन्वेंट्री. तो ग्रीडी अप्रोच आई वुड से इज नथिंग बट द आई वुड से आई कैन रिलेट इट टू समथिंग नोन एज रैशनली. तो फर्दर जब मैं अभी बात कर रहा हूं अबाउट हिस्ट्री, आप अभी डायग्राम, आप सब लोग अभी अनम्यूट हो जाओ, फटाक से मुझे डायग्राम देख के बताओ. हिस्ट्री एआई चालू कैसे हुआ? अभी ये अपने को कुछ लिख के लेने की जरूरत नहीं है. आपको सब कुछ आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आपके वी बुक में, वंस यू आर एडमिटेड एज अ विद्यालंकर स्टूडेंट. तो यहां पे अगर आप देखोगे, दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एआई, जहां पे एक ग्रीक माइथोलॉजी में 1943 में एक एनिमेटेड रोबोट बनाया जिसका नाम था टेलोस. ठीक है. इट वाज द फर्स्ट रोबोट which was which actually I would say gave birth to the concept of AI. Then what you see on the screen was nothing but Alan Turing in his research paper mentioned one statement saying that system can also think. System can also think. This was the statement given by Alan Turing, and in this manner the growth of AI started. Further, जब मैं बात कर रहा हूं about, ये क्या दिख रहा है आपको? What exactly you can see on your screen? क्या दिख रहा है आपको ये? Chess board. Chess board. So the first chess program, chess playing program was written in 1951. ठीक है. 1951 में ये चेस, ऑटोमेटिक चेस प्लेइंग प्रोग्राम वाज रिटन. एंड अगर आप देखोगे आजकल बोर्ड गेम्स बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं इवन ऑन ऑनलाइन, वेदर इट्स स्नेक एंड लैडर्स या वेदर इट्स लूडो और इवन चेस. बहुत सारे बोर्ड गेम आज फेमस हो रहे हैं एंड मेनी पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. सो अगेन हाउ इट इज मेड? इट इज प्योरली मेड विद द हेल्प ऑफ एआई. सो नेक्स्ट, in 1956, John McCarthy termed or coined this term known as AI.
नाउ यू विल सी इधर ईयर का गड़बड़ है, ठीक है. सो AI द टर्म वाज कॉइंड. फर्दर व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, IBM ने सॉरी MIT ने यूएस में सबसे पहला AI लैब एस्टैब्लिश किया था, सबसे पहला AI लैब, ठीक है, 1959 में. तो इस तरह से AI के ब्रांचेस को अभी एक आई वुड से लैडर मिलना चालू हुआ था. फर्दर व्हाट यू सी ओवर हियर, क्या है ये, व्हाट दिस इमेज इंडिकेट्स? यस, एनी वन ऑफ यू? Assembly system. असेंबली सिस्टम. तो दिस आर नथिंग बट सबसे पहला कार मैन्युफैक्चरिंग रोबोट बनाया था जनरल मोटर्स ने 1960 में. जनरल मोटर्स आजकल वैसे इंडिया में ज्यादा दिखता है नहीं, बट देन जनरल मोटर्स आर दोज हु हैव गिवन अ प्लेटफॉर्म टू, इफ यू आर अवेयर ऑफ द कार नोन एज शेवरोले, ठीक है. एंड जनरल मोटर्स के कार्स कोलकाता में आज बहुत चलते हैं, एंड दैट आर नथिंग बट एम्बेसडर्स. तो जनरल मोटर ने 1960 में ये रोबोट बनाया, विच वाज अ ऑटोमेटिक कार मैन्युफैक्चरिंग रोबोट, एंड एंटायरली इट वाज बेस्ड ऑन AI. फर्दर क्या दिख रहा है आपको ये स्क्रीन पे, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, एनीवन कैन टेल मी? Google Assistant. So what is that Google Assistant? Chatbot. Chatbot. So first chatbot was created right in 1961, but obviously it was not that intelligent as the chatbot is today. But then कब बनाया था? It was created in 1961, तभी प्रोग्राम किया था the first chatbot. उसके बाद IBM ने वर्ल्ड चेस प्लेयर को, जो चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर को हराया था IBM के डीप ब्लू नाम के मशीन ने. ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर IBM का डीप ब्लू मशीन. ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि इधर मूवमेंट्स क्या होने चाहिए बेस्ड ऑन हिज मूवमेंट्स. एंड ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर IBM. फर्दर फोक्सवैगन ने ये एंड्रॉइड बेस्ड कार रिलीज किया था, ठीक है. द कार का नाम था स्टैनली, ठीक है, इन अ कार रेसिंग चैलेंज नोन एज डायरपा ग्रैंड चैलेंज, ठीक है. तो ये कार रिलीज किया था फोक्सवैगन ने, विच वाज ये आपको दिख रहा है. तो दिस वाज एंटायरली अ AI बेस्ड कार. फर्दर आई बिलीव एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस. कोई बताएगा व्हाट इज दिस IBM वॉटसन? आज क्यों फेमस है वो? What is this IBM Watson? So it's a supercomputer, AI based. It's a supercomputer. What exactly is the application of IBM Watson? Sir, companies use it for their AI systems. Like पहले से उसमें trained models रहते हैं. Yes, perfect. So IBM Watson is actually it is used by many of the big I would say brands, those who are imparting AI into their system. And this IBM Watson जब बनाया था in 2011, तभी इसने बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उनको हराया था इन क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है. सो इट इज अ प्रॉपरली, इसमें बहुत सारे प्री ट्रेंड मॉड्यूल्स रहते हैं. सो बहुत सारे कंपनीज आर यूजिंग दिस दिस IBM Watson. तो दिस वाज एन ओवरऑल जर्नी आई वुड से ऑफ AI. तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये AI का जर्नी आपके एग्जाम में लिखने को नहीं आएगा, जस्ट कि AI आया कैसे ये आपको आपके PPT में मिल जाएगा व्हेन इट वुड बी अपलोडेड ऑन योर वीबुक. तो ये आपको एज सच लिखने की जरूरत नहीं है. बट अभी आपको एक चीज आपके नोटबुक में लिखना है, तो प्लीज जरा आपके नोटबुक में हेडिंग दीजिए ट्यूरिंग टेस्ट. ट्यूरिंग टेस्ट. तो ट्यूरिंग टेस्ट में आपको क्या बताना है? इधर एक बंदा बैठा है, दैट इज योर टेस्टर, ऑल्सो नोन एज इंटरोगेटर. यहां पे एक बंदा बैठा है, एंड दैट इज नथिंग बट योर कंप्यूटर. और यहां पे एक बंदा बैठा है,
that is nothing but your human. ठीक है. What your tester is doing actually, आपका टेस्टर क्या करता है? आपका टेस्टर इनको, इन दोनों को क्या भेजता है? क्वेश्चन. एंड आपका टेस्टर क्या करता है? इन दोनों से क्या एक्सपेक्ट करता है? आंसर. और वो आंसर मिलने के बाद, वो आंसर जो कंप्यूटर से आया AC और जो आंसर ह्यूमन से आया AH, उसको वो कंपेयर करता है. एंड ट्यूरिंग टेस्ट क्या बोलता है? टेस्टर शुड नॉट बी एबल टू रियलाइज कि ये रिप्लाई कंप्यूटर का है, ये रिप्लाई ह्यूमन का है. तो अभी ह्यूमन कैनॉट थिंक लाइक कंप्यूटर, बिकॉज ह्यूमन ही तो है जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है, कंप्यूटर को ट्रेन करता है. तो आपके कंप्यूटर को इस तरह से आप ट्रेन कीजिए कि उसके सब आंसर्स आर वेरी मच इक्विवेलेंट टू द आंसर्स गिवन बाय ह्यूमन, सो दैट द टेस्टर इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. एंड दिस इज नथिंग बट Turing test, which is not only important for your Viva, as well as it is important for your placement interviews. So आपको पूछा जाता है बहुत बार इंटरव्यूज में, when the company is hiring the individual for AI based system, what exactly is Turing test? तो भाई Turing test का आप आंसर दे पाओगे ना? सबको समझा ना what exactly is Turing test? Every one of you in the class? Yes, sir. Okay, Yes, so write down sir. in your notebook Turing test. ठीक है, and draw this diagram. Turing test and draw this diagram. और आप स्टेटमेंट लिख दीजिए डायग्राम के बाद. टेस्टर शुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रिप्लाई ऑफ कंप्यूटर एंड रिप्लाई ऑफ ह्यूमन. Tester should not be able to differentiate between reply of computer and reply of human. Reply of computer and reply of human. Reply of computer and reply of human. Tester should not be able to differentiate between the reply of computer and reply of human. Shall I proceed? Yes, sir. Yes, everyone, diagram done? Yes, sir. Okay.
चलो, अभी मैं बात करूंगा अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जो आपके वाइवा में पूछा जाता है और कभी कभी आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लिख के लो, क्योंकि मैं आपको ये आंसर पूरा का पूरा आपके पीपीटी में दे दूंगा जब आपको ये पीपीटी मिलेगा। तो ये आंसर आपको वापस पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बट देन व्हाट आर द बेसिक कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एआई हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट एआई के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एंड देन आई वुड शिफ्ट टुवर्ड्स द सम्स, एंड देन इफ टाइम परमिट्स आई वुड स्टार्ट विद 1.2, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक डायग्राम्स है, सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स है। ठीक है, 1.2 यू आर रियली गोना एंजॉय। ठीक है, तो अभी मैं अगर बात करूं अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एआई, तो आप ये देखो, इट इज ऑटोमेटिक, सिर्फ चेस नहीं है, दिस इज ओनली एन एग्जांपल ऑफ अ चेस, बट ऑटोमेटिक बोर्ड गेम प्लेइंग रोबोट्स। ठीक है, एंड ऑल द टाइम आप ऐसा मत समझो रोबोट्स मतलब हर वक्त वो हार्डवेयर ही आएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो जनरेट द रोबोट्स बाय प्रोग्रामिंग। तो ये आपका एक फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया कि प्लेइंग चेस। ठीक है, आप अगर देखोगे सेकेंड, मुझे आप बताओ ये कौन सा एग्जांपल है? व्हाट एग्जांपल यू सी अबाउट दिस इज योर वेरी फेमस कार इन यूएस। सब लोग ने सुना ही होगा भाई, ये मॉडल क्या है? Model 3. Yes, this is Model 3, and then what is the use? Self-driving car. Exactly. This is your autonomous car, and how it is working exactly. It is working with n number of sensors. Further, when I'm talking about chatbot. Now, I have already discussed chatbot हुआ है, but then chatbot जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, the chatbot is directly interacting with the user, and user is actually not even able to understand कि कौन बात कर रहा है। अभी अपने को थोड़ा we are more somewhat have more intelligence being a part of engineering background, but बहुत लोग को लगता है कोई सामने वाला बंदा ही रिप्लाई कर रहा है। ट्रस्ट में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि what is the application of Google that continuously chats with you? किसी को पता है उसका नाम? गूगल का ऐसा एप्लीकेशन जो कंटिन्यूअसली आपके साथ चैट करते ही रहता है। नो वन अवेयर ऑफ दैट एप्लीकेशन? यस, नो वन? आप चेक कर लो नेट पे, गूगल आलो। नाउ व्हाट इज दिस गूगल आलो? गूगल आलो इज अ ऑटोमेटिक चैटबॉट। आप उसको जो पूछो आंसर देगा। सो बोलते हैं ना ऐसा, अगर अपने बहुत बोर हो रहा है लॉकडाउन में सब करके, वही पक गया है, तो इसके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, एंड यू कैन गेट मे बी एक कुछ ऐसा आपका क्लिक हो सकता है कि हम लोग भी ऐसा कुछ एक सिस्टम जनरेट करें या इसका कुछ फ्लॉ निकाले। पॉसिबली ट्राई दिस गूगल चैटबॉट नोन एज गूगल आलो। फर्दर वेरी फेमस एप्लीकेशन गूगल होम और ये अमेजोन का एलेक्सा। ठीक है, सो हम लोग बोलते हैं ना एलेक्सा प्ले लैला में लैला, तो एलेक्सा का काम क्या है? उसको सिर्फ ये वर्ड सुनना रहता है बस। जैसे उसने ये वर्ड सुना, वो ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देता है। तो वो वर्ड के बाद आप जो कुछ भी बोलते हो, इट इज लाइक अ कमांड फॉर इट। सो दिस इज नथिंग बट स्पीच रिकॉग्निशन। और आपको अगर पता रहेगा स्पीच रिकॉग्निशन, आज आप एलेक्सा से हिंदी में भी बात कर सकते हो, आप एलेक्सा से मराठी में भी बात कर सकते हो, आप एलेक्सा से इंग्लिश से भी बात कर सकते हो, एंड दैट इज ओनली मेड पॉसिबल ड्यू टू दिस कंसेप्ट ऑफ NLP. व्हाट इज NLP? NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. So NLP is the next, I would say, a subset of AI. Further, what you can see on your screen is disease diagnosis system. And specifically, अगर मैं बात करूं about disease diagnosis system, it is generally using a concept of neural network known as artificial neural network. ठीक है, जो आपके सिलेबस में है कॉमर्स वालों को एज अ सेकेंड पार्ट ऑफ AI, दैट इज सॉफ्ट कंप्यूटिंग. तो और डिजीज डायग्नोसिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ और इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ AI.
तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एआई. तो आप जरा नोटबुक में सिर्फ मेंशन करके लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ एआई, ब्रैकेट में लिखो रेफर पीडीएफ. एप्लीकेशंस ऑफ एआई ब्रैकेट में लिखो रेफर पीडीएफ. ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट भी रहेगा. ठीक है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि भर भर के थियरी में आपको लिख के दूं. But now the last thing what is important from your first chapter is this. Give the heading as in your notebook AI Foundation / components. AI Foundation / components. तो ये एआई फाउंडेशन क्या बताने की कोशिश करता है? एआई फाउंडेशन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज मस्ट, व्हाट इज रियली वेरी मच नेसेसरी इज बिफोर स्टार्टिंग कोई मुझे बता पाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी? एनीवन? आपको जो लगता है फिलॉसफी मतलब क्या एंड साइकोलॉजी मतलब क्या? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर वाइवा. So yes, anyone, what is the difference between philosophy and psychology? So philosophy is more of literature and psychology means what a human will do. Like that. Exactly. Philosophy is more based on documentation. Whereas psychology is more based on understanding the human emotions. So AI, how exactly it starts? AI starts with philosophy. तो जैसे आपको दिखेगा philosophy मतलब you are trying to understand the knowledge like structure, the mind like structure of a human being. But after understanding it, how exactly you are going to maybe realize or maybe implement that is with the help of this mathematical model. ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, the mathematics is used for imparting this philosophy into a mathematical world जो system को समझता है. And after that you need to understand the linguistic part. Now what is linguistic part? जब हम कहते हैं ना he is tall, he is very tall, he is short, he is very short, he is intelligent, he is extraordinary, he is outstanding. तो ये जो मैं adjectives दे रहा हूं ना, they are actually known as linguistic variables. तो आप इधर ह्यूमन का ब्रेन अंडरस्टैंड करोगे, ह्यूमन का माइंड अंडरस्टैंड करोगे. ठीक है, उसको आप मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करोगे तो यू रिक्वायर अ मैथमेटिशियन. ठीक है, एंड एवरी मैथमेटिशियन मॉडल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये जब मैं फजी लॉजिक पढ़ाऊंगा आपको और डिटेल में क्लियर होगा. यू नीड टू गिव एडजेक्टिव टू एवरी मॉडल दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड दैट इज नोन एज लिंग्विस्टिक. देन यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है, जिसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा न्यूरोसाइंस. ठीक है, न्यूरोसाइंस में यू आर गोइंग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ artificial neural network. Now once you have understood the brain, once you have understood the mind, once you have given a logic behind it by using some mathematical representation, you have given a linguistic variable to every problem that you have identified. Now you are trying to understand the neural structure which actually helps in a thinking process.
Then you require a psychologist to understand the human emotions. You require a computer science because you require to program your system. And finally, the control theory. And control theory is responsible to take a continuous feedback. फीडबैक ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा है? तो AI Foundation revolves around how the brain is, how the mind is, how you're representing that in a mathematical equation, how you're mapping those problems with some linguistic variables by adding some adjectives, how you're understanding the thinking process, how you're understanding the emotional part, the psychological part of a human being, how you're going to program it. And you need to always keep your system in a way that you take a feedback so that you will further improve. So you require a control theory, and this everything forms the AI Foundation. So guys, for a timing, any doubt with AI Foundation? Any doubt with AI Foundation, guys? सबको समझा है? Everyone? Yes, sir. Okay. तो ये Yes. जैसे मैंने आपको बोला, this is important only for your Viva. ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है AI फाउंडेशन, बट देन आई बिलीव AI फाउंडेशन आपको समझा है. तो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर देखोगे, मतलब ये भी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं. AI फाउंडेशन लिख के मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा एंड लिखो रेफर PDF. रेफर PDF. So I will give you quickly 2 minutes. I will wait. आप रिकलेक्ट करो मैंने जो बोला है, एंड अगर आपको कुछ डाउट है आप डाउट क्लियर कर लो. इफ नो डाउट आई विल चेंज ओवर टू द नेक्स्ट चैप्टर जहां पे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स. सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, थिंक ऑन इट. अगर आपको कुछ डाउट है आप क्लियर कर लो. Yes, any doubt? Shall I proceed? Guys, any doubt? No doubts. Okay. कोई तो मस्त गाना गा रहा था. Okay. Now I want to introduce one problem to you. तो वो प्रॉब्लम क्या है? हम लोग 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे, एंड सिंस इट्स द फर्स्ट लेक्चर आफ्टर 2 प्रॉब्लम्स वी वुड स्टॉप, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई वुड स्टार्ट विद 1.2 जहां पे आई वुड बी टॉकिंग अबाउट एजेंट्स. बट अभी आपको एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं. उस प्रॉब्लम के लिए आप कैसे कैसे एल्गोरिथम डिजाइन करोगे, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो पहला प्रॉब्लम जो है ना, दैट इज एक्चुअली नोन एज वाटर जग प्रॉब्लम. तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वाटर जग प्रॉब्लम? वाटर जग प्रॉब्लम का एम अपना ये रहता है, आई विल जस्ट शो यू ऑन द स्क्रीन.
Yes. Can you see my screen? Okay. अगर आप देखोगे यहां पे दो वाटर जग है, एक वाटर जग है जिसका कैपेसिटी है 4 गैलन और एक वाटर जग है जिसका कैपेसिटी है 3 गैलन। तो गाइस अपने को क्या करना है पता है? अपना एम इधर ये है, आप ये एम अगर पढ़ोगे, अपना एम इज नो वाटर जग हैज मार्किंग ऑन हाउ मच वाटर इज प्रेजेंट एंड द गोल इज टू फिल 4 गैलन वाटर विथ 2 गैलन वाटर। ठीक है, अपना एम क्या है? अपना एम ये है कि 4 गैलन ऑफ वाटर कैसे हम फिल करेंगे विथ 2 गैलन ऑफ वाटर, और कोई भी जग पे मार्किंग नहीं है। तो दिस इज अवर एम एंड लेट अस अंडरस्टैंड, लेट अस सॉल्व दिस। तो आपको एक आइडिया आएगा कि एआई में आपको एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करना पड़ेगा। तो आपका प्रॉब्लम है ये, दिस इज योर 4 गैलन का जग एंड दिस इज योर 3 गैलन का जग। तो अभी मैं जब बात कर रहा हूं अबाउट 4 गैलन का जग एंड 3 गैलन का जग, मुझे कुछ ना कुछ एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज माय इनिशियल स्टेट? Always remember your initial state is represented as is. So can you tell me what is my initial state and what is my goal state? तो आपके एग्जाम में भी ना ऐसे लिख के आते हैं is and gs। ठीक है, अज्यूम करो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय x, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय y। तो माय इनिशियल स्टेट क्या है? मेरा इनिशियल स्टेट ये है कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। मतलब दोनों के दोनों वाटर जग एम्प्टी है। एंड गोल स्टेट क्या है? गोल स्टेट का मतलब है इधर होना चाहिए x इक्वल टू 2 गैलन्स ऑफ वाटर और इधर कुछ भी होगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। So my state is actually initial state. This implies my initial state is 0,0 and this implies my initial the goal state is 2,n, where this is for 4 gallon of jug and where this is for 3 gallon of jug. Any doubt for a timing with this? क्या आपको समझा है फिलहाल जो मैंने आपको बताया हुआ है? So my initial state is 0,0. My goal state is 2,n. समझा क्या? तो अभी लेट अस स्टार्ट डिजाइनिंग एल्गोरिदम फॉर दिस। और जो आप एल्गोरिदम डिजाइन करो उसी एल्गोरिदम से आपको एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो पहला एल्गोरिदम है, चलो मेरे को बोलो, फर्स्ट एल्गोरिदम इज फिल 4 गैलन ऑफ वाटर। पहला है कि फिल योर 4, आपका जो पहला जग है, ठीक है, मैं इसको बोलता हूं, चलो जग ए रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, जग बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है, जग ए का कैपेसिटी कितना याद रखो 4g एंड जग बी का कैपेसिटी कितना याद रखो 3g। मुझे क्या करना है? मुझे अभी फिल करना है। ठीक है, मुझे अभी फिल करना है। मुझे क्या फिल करना है? आई वॉन्ट टू फिल माई 4 गैलन ऑफ वाटर। तो कैन यू टेल मी मेरा इधर स्टेट क्या मुझे दिखेगा? 4 गैलन। मैं इधर लिखता हूं, मेरा स्टेट रहेगा 4,y। मुझे सेकेंड वाला पूरा जग भरना है, सेकेंड वाला जग पूरा का पूरा भरना है। तो मुझे बोलो सेकेंड वाला जग पूरा भरने के लिए मैं इधर क्या लिखूंगा? मेरे इधर रहेगा x,3। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? Yes, sir. ओके, माय स्टेप नंबर 3 इज एम्प्टी जग ए। तो कैन यू टेल मी मुझे इधर क्या दिखेगा? 0,y। एम्प्टी जग बी, इधर वैल्यू क्या रहेगा? अभी आप बताओ, x,0। समझा? अभी पहले मैंने क्या किया? जग ए को पूरा भरा, फिर मैंने क्या किया? जग बी को पूरा भरा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आपको? एवरीवन, एनी डाउट फॉर अ टाइमिंग? एनी डाउट फॉर अ टाइमिंग? क्या मैं आगे बढ़ू? ओके, Yes, sir. अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे एक काम करना है कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफर एंटायर वाटर ऑफ ए टू बी।
I want to transfer entire water of A to B. There is some इंटरनेट इशू, इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन बीच में ब्लैकआउट हो रहा है. ठीक है, चलो मेरे को बता दो. आई वॉन्ट टू एम्प्टी एंटायर वाटर. एंटायर जितना भी वाटर है ना, मुझे पूरा खाली करना है. कैन यू टेल मी मेरा इक्वेशन क्या रहेगा? पूरा पानी जो जग ए में है, मुझे पूरा क्या करना है, मैंने पूरा खाली कर दिया. आई वॉन्ट टू मूव दैट एंटायरली इनटू जग बी. तो कहना है से ये इक्वेशन रहेगा 0,3. इसमें तो 3 जा सकता है ना. इसमें क्यों 3 जा सकते हैं? क्योंकि उसका कैपेसिटी कितना है, 3 है. तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा था वो क्या होगा? वो वेस्ट होगा, क्योंकि द रूल सेज लाइक दिस. चलो मेरे को बात बताओ. आई वॉन्ट टू एम्प्टी एंटायर जग बी इंटू जग ए. तो इधर क्या आएगा? 4,0. 4,0. ठीक है. नाउ इट डिपेंड्स 4,0 आएगा क्या. सो कैन यू टेल मी एग्जैक्टली क्या रहेगा वो? कैन आई से इट वुड बी 3,0 अज्यूमिंग जग ए में पानी ही नहीं है. Yes. ठीक है. पर अभी ना अपने को इसको आई नीड टू एक्सप्लेन दिस इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन. तो ये बॉस ये नहीं चलेगा. तो अपने को थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा और इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. व्हाट वाज माय स्टेप नंबर 5? व्हाट वाज माय रूल नंबर 5? बताओ मुझे. माय रूल नंबर 5 क्या था बताओ. माय रूल नंबर 5 ये था कि पूरा का पूरा जग ए में जो पानी है वो जग बी में डालो. तो मेरे को बोलो जग ए में पानी कितना रहेगा? x. वो अगर जग बी में डाल देता हूं, कहना से वो बनेगा y प्लस एक्स. सच दैट y प्लस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू, यू आंसर, y प्लस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? 3. एग्जैक्टली. तो मैंने इधर का पूरा पानी इधर ट्रांसफर कर दिया. तो अल्टीमेटली इधर बनेगा 0 और इधर बनेगा y प्लस एक्स. चलो मेरे को इधर बात बताओ. आई वॉन्ट टू पोर एंटायर वाटर ऑफ जग बी इंटू जग ए. टेल मी क्या होगा? जग बी इंटू जग ए. ये कौन है? y. तो ये कौन बनेगा? x प्लस वाई. सच वे दैट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4. समझा ना? अभी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आना चालू होगा, क्योंकि ना अभी हम लोग थोड़ा थियरी से मुक्त हो रहे हैं. ठीक है. एंड कमिंग एट बी लेवल, बट ऑब्वियसली पीपल विल ओनली एंजॉय व्हेन लॉजिक बिल्डिंग कम्स, व्हेन सम्स कम्स, रादर देन दैट थियरी जिसको अपने को मगअप करना पड़ता है. तो अभी मैंने आपको क्या क्या रूल्स बताए मेरे को अभी तक. पहला रूल बताओ. व्हाट वाज फर्स्ट रूल? What was first rule? पूरा भरो. What was this second set of rules? क्या लिखा मैंने? पूरा खाली करो. What was the third rule? To pour from A to B and B to A. पूरा शिफ्ट करो. ठीक है. इधर खाली करो मतलब मैं इधर फेंकने वाला हूं. शिफ्ट मतलब मैं इधर A to B डालूंगा, नहीं तो B to A डालूंगा. आपको फिलहाल ये 6 रूल्स समझे क्या? 6 रूल्स. Yes sir. अच्छा. अभी मैं आपको एक रूल बताता हूं. आपका जो नेक्स्ट रूल है जो आपको अंडरस्टैंड करना है इज ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम 4G to 3G. उसका क्या मतलब है? स्क्रीन चलेगा है क्या? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी. ब्लैकआउट है. जस्ट अ सेकंड. From A to B. इज इट विजिबल नाउ? Yes sir. ओके. अभी जो 4th रूल है ना गाइस, 4th रूल, उधर क्या लिखा है? पूरा शिफ्ट करो. मैं इधर लिखता हूं Some amount of water. थोड़ा शिफ्ट करो. तो अभी आपके बनेंगे टोटल 8 रूल, 7 and 8. अभी 7 and 8 को ना थोड़ा सा भी अपने को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे एक बात बताओ. मैं थोड़ा सा शिफ्ट करने वाला हूं, मतलब ये क्या है? बताओ मुझे. ये क्या है? X. ये क्या है? Y. अज्यूम करो. मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा आप अज्यूम करो
आपके y में 2 लीटर है या 2 गैलन का पानी ऑलरेडी है भाई लोगों, 2 गैलन का पानी ऑलरेडी है। तो मेरे को बोलो, प्लीज म्यूट कर दो जिधर पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है, ओनली अनम्यूट व्हेन यू वांट टू आंसर। ओके, तो अभी आप अगर देखोगे तो यहां से पानी यहां ट्रांसफर होगा। Yes, sir. अज्यूम ये 4 है, मैक्सिमम इसमें कितना जाएगा रे बताओ मेरे को। 3 मतलब कहने से इधर से कम होगा, Yes. फॉर श्योर कम होगा तो माइनस आएगा। 1 कितना कम होगा? 1 इधर कितना है? 2 इधर कितना है? y। Why? मैक्सिमम कितना होगा? 3। 3 है। तो कहने से 3 माइनस y। तुम सोचो ना, 3 माइनस 2, व्हाट इज 3 माइनस 2? 1 1. 1। तो 1 गैलन इधर जाएगा, तो इधर कितना बचेगा? 3। 3 है। समझा ना? Yes, sir. अरे इधर कितना बचेगा? ये 4 है, अगर x 4 है और 4 में से मैं 3 माइनस 2 डालता हूं, 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। मतलब 1 गैलन उधर जाएगा तो इधर बनेगा 2 प्लस 1, इधर बनेगा 4 माइनस 1, मतलब इधर कितना बाकी रहेगा? 3। तो इधर देखो, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कुछ नहीं है, इधर सिंपल मैथमेटिक्स है। ये आपके भेजे में गया, कैसे आया इक्वेशन? Yes, sir. ठीक है, मैं चलो ये इक्वेशन डाउट पूछने के पहले चलो लेट अस अंडरस्टैंड सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जरा आप आंसर दो तो मुझे समझेगा कि आपको वो समझ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन मेरे को बात बताओ। Sir, can you repeat the step 7? Yes, आई विल रिपीट स्टेप 7 एंड 8 टुगेदर। तो स्टेप 8 एक मिनट देख लो। मुझे अभी क्या करना है पता है? मुझे अभी ये किसका था? ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम ए टू बी, बराबर? Yes. अभी ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम बी टू ए। तो बी टू ए मतलब मेरे को बात बताओ, बी टू ए मतलब इधर रहेगा, अज्यूम करो x। X. कैन यू टेल मी इधर क्या है? y। अज्यूम करो x इज 2, अज्यूम करो y इज 3। ठीक है, मेरे को बोलो मैं मैक्सिमम इस पे कितना पानी डाल सकता हूं? पानी डालूंगा मतलब पक्का माइनस। Yes. अच्छा, पक्का माइनस करूंगा। इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 4। 4. ऑलरेडी उसमें कितना है? 3. x। 3 नहीं है रे, 2 है इधर। हाँ, X. तो कैन यू टेल मी इधर पानी ट्रांसफर कितना ट्रांसफर होगा? व्हाट इज 4? व्हाट इज x? 2। व्हाट इज 4 माइनस 2? 2। तो यहां से 2 गैलन इधर जाएगा तो 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। तो इधर पानी कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो मैं ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, और कुछ भी डाउट है अभी पूछ लो। ये देखो, ये मेरा 4 गैलन, ये मेरा 3 गैलन। व्हाट इज माय एम? कहां से कहां डालना है? इधर से इधर। इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा? 4। इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा? 3। इसमें ऑलरेडी कितना भरा पड़ा है? 1। इसमें पड़ा है 1 2 3 4, 4 गैलन ऑलरेडी भरा है। इसमें कितना गैलन भरा है? इसमें ऑलरेडी 2 गैलन भरा हुआ है, मतलब 1 2। इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है भाइयों? 3. इसमें मैक्सिमम कितना आ सकता है? 1। तो मेरे को बोलो इधर से गया 1, ठीक है, ऐसे इधर से गया 1 तो वो इधर आएगा। तो इधर से 1 चले गया तो इधर कितना बाकी रहेगा? 3। तो ये इक्वेशन कैसे फाइंड किया आपने? आप x में से इसका कैपेसिटी देखो, मैक्सिमम कितना है? 3। ऑलरेडी उसमें कितना है? y। तो y का वैल्यू इधर कितना है? 2। और इधर अपना x का वैल्यू कितना है? 4। तो टोटल वैल्यू मेरा क्या बनेगा? 4 माइनस 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3। इधर रहेगा 3, इधर रहेगा 3। समझा क्या कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir.
ठीक है, जो डाउट पूछ रहा था उसको क्लियर हुआ ये? हाँ सर, यस। एवरीवन? यस सर। तो क्या आपको ये रूल समझा भाइयों? ये कैसे रूल बना समझा अभी आपको? दिस इज थोड़ा शिफ्ट करना, दिस इज थोड़ा शिफ्ट करना ए टू बी, दिस इज थोड़ा शिफ्ट करना बी टू ए। शिफ्ट करना है ए से, मतलब एक्स माइनस, कितना शिफ्ट करोगे? इसमें जितना टोटल कैपेसिटी देखने का 3 माइनस इधर जितना है y, 3 माइनस वाई करोगे उतना आप ट्रांसफर करोगे, और x माइनस 3 माइनस वाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका a में पानी कितना रहने वाला है। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. अच्छा चलो, अभी अपन ना इसका सोल्यूशन बिल्ड करना चालू करते हैं। तो इसका सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए जरा इधर ध्यान दो। इसका सोल्यूशन बिल्ड करने के लिए कैन यू टेल मी व्हाट इज योर इनिशियल स्टेटस? व्हाट इज योर इनिशियल स्टेटस? Both classes are empty. वेरी गुड। चलो मेरे को बताओ, फिल वाटर विथ 3 गैलन, फिल वाटर इन जग बी विथ 3 गैलन। कहने से ये बनेगा 0,3। 0,3 कैन यू टेल मी ये कौन से रूल में फिट होता है? ये कौन से रूल में फिट होता है? रूल नंबर 3। चेक कर लो, इट फिट्स इन रूल नंबर 2, क्योंकि मैंने पानी पूरा भरो लिखा है ना, अच्छा, तो दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 से मैंने पानी पूरा भर दिया। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूं, अभी मैं आपको बात ये बोलता हूं, पूरा पानी जो है ना खाली करो, सॉरी पूरा पानी जो है ना ए में ट्रांसफर करो, पूरा पानी ए में ट्रांसफर करो। मतलब कहने से इधर आएगा 3 और इधर बनेगा 0। तो मैंने खाली किया या फेंक दिया ये बताओ? मैंने शिफ्ट किया या खाली किया? Shift किया। Shift. मतलब इधर कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 5 या रूल नंबर 6? 6. वेरी गुड, दिस इज रूल नंबर 6। समझा क्या अभी तक आपको? Yes, sir. समझा है ना अभी तक? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर, यस सर। ओके, तो अभी मेरे को एक बात बोलो, रूल नंबर 6, अभी अपने रूल नंबर जो आपने ये किया, अभी मैं क्या करना चाहता हूं? अरे यार, अभी मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे अभी वापस जग बी को भरना है, जग बी को भरना है। मतलब कहने से आई विल से रूल नंबर 2, तो मेरे को इधर पानी कितना दिखेगा? 3,3। समझा क्या? हाँ सर। अभी Sir, मैं 3,3 कैसा आएगा? इसमें ऑलरेडी पानी है ना, Okay. तो मैंने जग बी में पानी डाला। दिस इज Okay. जग ए, दिस इज जग बी। Okay. समझा कैसे आया? हाँ सर। हाँ चलो, अभी मेरे को एक बात बोलो, अभी मेरे को एक सिंपल बात बोलो। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी टू ए। आई वॉन्ट टू ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी टू ए। सम वाटर कौन से कैटेगरी में रहता है? 1 2 3 4? 4th category. 4th कैटेगरी का कौन सा रूल? सम वाटर फ्रॉम बी टू ए। एग्जैक्टली, दिस इज रूल नंबर Rule 8। number 8. मेरे को बोलो इधर कितना है? 3। इधर कितना है? 3। अभी इधर से मैं जब पानी इधर डालूंगा, मैक्सिमम कितना पानी डाल सकता हूं? 1 और इधर से कितना पानी जा सकता है? 1 समझा ना अभी आपको? तो कैन यू टेल मी, दिस इंप्लाइज आपका इक्वेशन क्या बनेगा? 4,2। 4,2 समझा क्या कैसे आया ये? यस Yes, सर। sir. अभी एक काम करो, पूरा ए का पानी खाली करो, पूरा ए का पानी खाली करो। पूरा ए का पानी खाली करोगे तो क्या होगा? 0,2। 0,2 पूरा ए का पानी खाली करो, मतलब आप कौन सा रूल लगाओगे? पूरा खाली करो ए का पानी, रूल नंबर 3। तो रूल आपको नंबर इधर 3। लगेगा, वेरी गुड, रूल नंबर 3। आप पूरा पानी खाली कर दो। अभी तो आपका सिंपल काम है, जो जग बी में है पूरा का पूरा पूरा shift जग ए में डाल दो। हो गया 2,0। अभी ये कौन से रूल से हुआ बताओ मुझे? पूरा खाली किया, पूरा शिफ्ट किया, थोड़ा शिफ्ट किया? आंसर सोच के दो।
पूरा खाली किया, पूरा शिफ्ट पूरा शिफ्ट किया, थोड़ा नहीं या पूरा, कितना था, 2 था ना, 2 का 2 मैंने इधर शिफ्ट किया, तो पूरा शिफ्ट किया मतलब B2A कौन सा रूल है, रूल नंबर 6। आपको पता चला है अब ये सॉल्यूशन कैसे बिल्ड किया मैंने? Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बात बताओ, वाटर जग प्रॉब्लम इनिशियल, ये मेरा गोल स्टेट है, क्योंकि याद करो मेरा गोल स्टेट क्या था, 2,n, इधर कुछ भी हो सकता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा इनिशियल स्टेट क्या था, याद करो, मेरा इनिशियल स्टेट था 0,0 और मेरा गोल स्टेट था 2,n। समझा क्या आपको कैसे हुआ ये? यस सर, एवरीवन, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझा आपको? और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए मैंने एल्गोरिदम बनाया, कितने स्टेप्स का एल्गोरिदम बनाया, 8 स्टेप्स का एल्गोरिदम बनाया। समझा है क्या आपको? Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. तो चलो नोटबुक में आप अभी ये 2 और एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम देखेंगे और हम लोग वी वुड स्टॉप। तो आप नोटबुक में लिखिए, राइट डाउन इन योर नोटबुक। हम लोग नोटबुक में बाद में लिखते हैं क्या, और एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हाँ सर, चलेगा? हाँ सर, चले। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग कहते हैं 8 पजल प्रॉब्लम। ठीक है, सॉरी, इट इज 9 टाइल प्रॉब्लम, नॉट 8 पजल, 9 टाइल प्रॉब्लम। उसका जरा मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूं। 9 टाइल या 8 पजल प्रॉब्लम उसको कहते हैं। जस्ट अ सेकेंड। Can you see my screen now? Yes, sir. Okay. This is also known as 8 puzzle problem या 9 tile problem. ठीक है? Now let us try to understand what exactly is this 8 puzzle problem. Can you see the initial state? This is the initial state. And can you see the goal state? This is the goal state. And what I do is I will represent this tile by 9. तो जब 9 दिखेगा ना, 9 मतलब टाइल, और टाइल किधर होना चाहिए, सेंटर में। अच्छा, अभी आपका मूवमेंट देखो कैसे हो सकता है। इधर यू कैन मूव टू राइट, और यू कैन मूव टू लेफ्ट, और यू कैन मूव अप, और यू कैन मूव डाउन। क्या समझा आपको इसका मूवमेंट कैसा होगा? एवरी टाइल कैन मूव इधर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये याद रखो। तो अभी मुझे आप थोड़ा हेल्प करो कि मैं फाइनल सॉल्यूशन तो कैसे पहुंचूं। मैं अभी सीधा सॉल्यूशन स्पेस में जाता हूं। अभी आपको एल्गोरिथम पता है, टेल मी व्हाट इज द एल्गोरिथम। देयर आर ओनली 4 स्टेप्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मूव लेफ्ट। टेल मी सेकंड स्टेप, मूव राइट। Right. टेल मी थर्ड स्टेप, मूव टॉप, Up. मूव बॉटम, बॉटम। एंड व्हेन आई से मूव, याद रखो मूव मतलब हम लोग करेंगे स्वैप। क्या करेंगे? Swap. तो डायरेक्टली सॉल्यूशन स्पेस पे ही चलते हैं। नाउ यू नो द गोल स्टेट, यू नो द इनिशियल स्टेट। ये मेरा इनिशियल स्टेट है, ठीक है। सो चलो मैं इधर एक बार फटाक से इनिशियल स्टेट वापस लिख लेता हूं। सो टेल मी व्हाट इज माय इनिशियल स्टेट। 2 8 3 1 6 4 7। टाइल मतलब क्या बताओ? 9. 9। तो मैं ऐसा उसको मार्क करता हूं। समझा क्या अभी तक? ये मेरा इनिशियल स्टेट है। शैल वी प्रोसीड नाउ हाउ वी कैन बिल्ड दिस एल्गोरिथम?
आप खुद ट्राई करना चाहोगे? चलो मैं ही सोल्यूशन देता हूं, देख लो। अभी ये मेरा इनिशियल स्टेट है, स्टेप 1। स्टेप 2, 9 को ऊपर लेके जाओ। तो कैन यू टेल मी आपको क्या दिखेगा अभी? 2 8 3 1 4 7 5। इधर जाएगा 9। कैन यू टेल मी इधर क्या आएगा? 6. इजी एवरीवन? फॉर अ टाइमिंग इजी? Yes, sir. अच्छा, अभी आपको क्या करना है, ये देखो, ये सब प्रॉपर है, पर इधर आना चाहिए 8, इधर आना चाहिए 1, इधर आना चाहिए 2। मैं अभी एक काम करता हूं। व्हाट वाज माय फर्स्ट स्टेप? टेल मी व्हाट रूल आई अप्लाइड। मेरे पास 4 रूल्स है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। मैंने अभी क्या किया? कौन सा रूल Rule अप्लाई number किया? 3. Rule number 3. Move top. वेरी गुड। Move top. नाउ नेक्स्ट स्टेप, what I do is I swap 8 with 9. So can you tell me अभी आपका स्ट्रक्चर क्या दिखेगा? 1 7 6 5 4 3। इधर क्या आएगा? 9। इधर क्या आएगा? 8। कैन यू टेल मी कौन सा रूल है? Move Rule number top. 3. रूल नंबर 3। ठीक है, चलो मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप बताओ कैसे आएगा। मैं एक काम करता हूं, अभी अगर इसको देखोगा तो 9 और 2 को स्वैप करता हूं। चलो 9 और 2 को स्वैप किया तो इसका कंटिन्यूड रूल है। 9 और 2 को स्वैप किया मतलब 9 को लेफ्ट में मूव किया। लेफ्ट मतलब रूल नंबर 1। तो कैन यू टेल मी अभी आपको इधर क्या दिखेगा? 9 2 3 1 8 4 7 6 5 और ये आपका टाइम। अभी तक कुछ डाउट? No, sir. Oh, sir. No, sir. अभी आप अभी नेक्स्ट मूवमेंट आप बताओ। स्टेप नंबर 5, 9 को कहां लेके जाओ? Down, bottom. Bottom. Move bottom. सो कैन यू टेल मी अभी आपको क्या दिखेगा इधर? 1 2 3 9 8 4 7 6 5। क्लियर है? Yes, sir. So anyone Yes, can sir. tell me the last step? And what would be the rule? Move to right. Rule number 2. So आपको इधर क्या मिलेगा स्टेप नंबर 6 में? बताओ। 1 2 2 3 3 4 5 Rule number 2. Move right. 7 8 और इधर 9 आएगा 9। tiles. ठीक है, सो अभी 9 would be nothing but a tile and this is my Final work. goal state. मजा आया अंडरस्टैंड में? Yes, sir. Yes, sir. फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग नाउ? Yes, sir. ठीक है, माय पर्सनल ओपिनियन इज थियरी में मजा नहीं आता है रे, प्रॉब्लम बेस में जब आएगा ना, जब एक्चुअल करने को मिलता है तब मजा आता है। सो कैन आई से नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, ठीक sir. है, sir. तो नेक्स्ट लेक्चर Yes. में हम लोग बात करेंगे अबाउट एजेंट्स, जहां पे एजेंट्स का मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एजेंट। एजेंट एक ऐसी चीज है विच इज गोइंग टू परसीव, विच इज गोइंग टू प्रोसेस, विच इज गोइंग टू गिव द आउटपुट। तो दैट एंटायर डोमेन जो एआई के 3 कंपोनेंट्स थे उसको बोला गया एजेंट। अभी लॉजिकली ना अपने पास 5 एजेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने एजेंट्स होते हैं? चलो वो 5 एजेंट्स कौन से मैं आपको बताता हूं। फॉर अ टाइमिंग हम लोग ये नोटबुक में सॉल्व करेंगे, तो आप जरा नोटबुक में लिखिए, एवरीवन इन योर नोटबुक राइट डाउन वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम। Write down. Write down. There are 2 water jugs, A and B. There are 2 water jugs, A and B.
with 4 gallons, capital G लिखो, with 4 gallons and 3 gallons respectively without any markings over it. 4 gallons and 3 gallons respectively without any markings over it. Without any markings over it. So this Draw- is the problem statement, right? Yes. Draw this diagram. And then write these 2 statements, initial state and goal state. Draw this diagram and then write initial state and goal state. So, Yes. Yes, tell me. so can you repeat the problem statement? There are 2 water jugs, A and B, with 4 gallons and 3 gallons respectively. With 4 gallons and 3 gallons respectively, and have no marking over it. And have no marking over it. And have no marking over it. उसके बाद इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट लिख लो यहां तक. इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट. There are 2 water jugs Of 4 gallon and 3 gallon respectively. next. No markings over it. Okay. ठीक है, अभी ये लिखो इनिशियल स्टेट गोल स्टेट जो लिखा है पूरा. इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट लिखो सिर्फ. Done. Then you write down. Developing algorithm. Developing algorithm bracket में steps / rules. Developing algorithm bracket में steps / rules. Rule number 1. Rule number 1. Fill A with 4g of water. Fill A with 4g of water. Fill A with 4g of water. ये रूल लिखो. ये लिखो 4, y और उसको सेंटर में लिखो और बॉक्स में डाल दो. सेंटर में लिखो और बॉक्स में डाल दो. Number 2. Fill jug B with 3 gallon of water. Fill jug B with 3 gallons of water. Fill jug B with 3 gallons of water. ये सेकेंड इक्वेशन लिखो. x, 3.
बॉक्स में डाल दो रूल को। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, empty jug A, write this equation 0, y, बॉक्स में डाल दो। empty jug A, ये आपका 10 मार्क्स क्वेश्चन है एग्जाम में। empty jug A, फोर्थ में लिखो empty jug B, और आपका नेक्स्ट आएगा x, 0, empty jug B, x, 0, x, 0। फिर लिखो रूल नंबर 5, शिफ्ट entire water from A to B, shift entire water from A to B, shift entire water from A to B। ये रूल नंबर 5 लिखो, शिफ्ट एंटायर वाटर फ्रॉम A to B, रूल नंबर 5, ये आपको दिखेगा इधर स्क्रीन पे, रूल नंबर 5, बॉक्स में डाल दो उसको। रूल नंबर 6, शिफ्ट एंटायर वाटर फ्रॉम B to A, और 6 का इक्वेशन लिखो सेंटर में, बॉक्स में डाल दो। शिफ्ट एंटायर वाटर फ्रॉम B to A, नेक्स्ट, ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम A to B, ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम A to B, इक्वेशन 7 लिखो, एंड ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम B to A, इक्वेशन 8 लिखो। ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम B to A, फ्रॉम B to A। और उसके बाद आप हेडिंग दो सॉल्यूशन ट्री, सॉल्यूशन ट्री। ये मैं वापस दिखा रहा हूं, आपका ये हुआ ना 7th और 8th लिख के, नहीं हुआ तो फटाक से लिख लो। सॉल्यूशन ट्री, तो ये सॉल्यूशन ट्री ड्रॉ करो। ये आपका इनिशियल स्टेट है, फिर रूल 2 अप्लाई किया। व्हाट वाज रूल 2? Fill B with A. व्हाट वाज रूल 6?
shift entire water from B to A. What was rule 2? इधर तक लिखो. इसके आगे भी सॉल्यूशन 3 है, तो फटाक से बोलो हो गया तो आगे स्क्रीन स्क्रॉल करता हूँ मैं. Yes, sir, done. Questions generally asked by students when I'm taking AI for last so many years. टेक्स्टबुक को कोई जरूरत है तो मैं बोलूंगा पीटर नॉर्विग इज द स्टैंडर्ड टेक्स्टबुक फॉर एआई, बट ट्रस्ट मी आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी. सब कुछ आपके पास नोटबुक में और विद्यालंकर के नोट से आपको मिल जाएगा. इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो बस मुझे यही चाहिए कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलो नेक्स्ट वीक मुझे और स्टूडेंट्स दिखने चाहिए, so that we can have a very good batch of AI for IT as well as AIC for computers. Okay. This is transfer all B to A. Transfer all B to A. Complete? Yes, sir. So, Yes, sir. Yeah. so for question one, multiple solution tree possible? Yes, 100%. Okay, sir. Okay, so I believe the solution is clear, right? Everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Chalo, next question number 2. Give the heading as 8 puzzle problem. Give the heading as 8 puzzle problem. 8 puzzle problem. और उसमें लिखो
गोल स्टेट बनाओ. गोल स्टेट बनाओ, इनिशियल स्टेट बनाओ. गोल स्टेट बनाओ, इनिशियल स्टेट बनाओ. और उसमें लिखो अभी आप एल्गोरिदम. एल्गोरिदम, 4 ही एल्गोरिदम्स है, 4 ही स्टेप्स है, 4 एल्गोरिदम, 4 ही स्टेप्स है. मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव टॉप, मूव बॉटम. मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव टॉप, मूव बॉटम. मूव लेफ्ट, मूव राइट, मूव टॉप, मूव बॉटम. और नीचे ना 4 स्टेप्स के नीचे ऐसा स्टार मार्क करके लिखो, मूविंग मीन्स स्वैपिंग. मूविंग मीन्स स्वैपिंग. ऐसा स्टार मार्क करके लिखो, मूविंग मीन्स स्वैपिंग. And now, well to go. You can start writing the solution on your own. I'll give you 2 minutes to do that, and after that we would stop for today's lecture. Since it was a first lecture, I'll leave you early. But then, guys, can I expect more of friends from your side in the next lecture? कोई फ्रेंड ज्वाइन करने वाला है, उनको बोलो कि बहुत लोग को ऐसे लग रहा है कि ये थियोरेटिकल है, तो थियोरेटिकल नहीं है ये सब्जेक्ट. And take an advantage, take a benefit of learning this subject. Trust me, जो आपके नोटबुक में रहेगा एंड ऑफ द सेमेस्टर, कोर्स खत्म होने के बाद, यू आर रियली गोना लाइक इट कि भाई एआई अच्छे से हमने पढ़ा है. चलो, ये आपको ये डोंट राइट द इन अ मैनर मैंने जैसे लिखा है. मेक श्योर एक लाइन पे एक ही, मतलब एक के नीचे एक आ रहा है स्टेप्स. सो इट्स फॉर्मिंग अ ट्री, प्रॉपर ट्री लाइक स्ट्रक्चर. सो फर्स्ट के नीचे सेकंड, सेकंड के नीचे थर्ड, थर्ड के नीचे फोर्थ. एंड रूल्स, रूल नंबर ही लिखना है आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी एल्गोरिदम ऊपर लिखा है. रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो इधर टॉप, टॉप लेफ्ट, this entirely depends on you.
इन अ मीनवाइल किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, कोई माइंड में डाउट रख के मत जाइए आप, कुछ डाउट है प्लीज क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीक 1.2 खत्म हो जाएगा, जहां पे हम लोग बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एजेंट्स, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट्स एंड पीस, PEAS, परफॉर्मेंस एनवायरमेंट एजेंट, सॉरी एक्चुएटर एंड सेंसर। नंबर तो आगे शेयर करेंगे ना, नो प्रॉब्लम, बट एक थोड़ा मतलब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन एनी टाइम कॉल ऑन विद्यालंकास 9। सो एनीवे नंबर दिया हुआ है अभी। So, done everyone? Done with this? Yes, sir. Done. Okay. So, I'll just stop sharing my screen. So guys, आज का लेक्चर अच्छे से समझा है everyone? I want feedback from everyone. Just put it on a chat window. आज का लेक्चर अच्छे से समझा है, कुछ डाउट है? I want to see more crowd in the next lecture. So please tell your friends. ठीक है, so I want everyone's opinion. आज के लेक्चर अच्छे से समझा है every one of you? So possibly ऐसा भी हो सकता है I have taught you in your SEM2 for SPA. But anyway, let's meet in the next lecture. That would be next Friday at 6 o'clock. So please tell your friends to join AI and SC and for IT AI. तो we would meet in the next lecture. For a timing, अगर किसी को डाउट है अभी आप खुद को अनम्यूट करके डाउट पूछिए, आई एम हियर. If doubts are not there, so take an admission. Next week we would meet next Friday 5 o'clock. So, Yes, tell me. so I'm from IT branch, Yes, and sir. we have soft computing as an elective subject. So, is that soft computing तुमचा similar? जो सॉफ्ट कम्प्युटिंग आहे त्याचे फर्स्ट 2 चॅप्टर्स वुड मॅच. Only first So- दोन chapters, बाकीचे नाही match होईल? नाही पूर्ण नाही. तुमचं ऍक्च्युअली तो तुमचा सॉफ्ट कम्प्युटिंग आहे ना, दॅट इज थोडासा ऍडव्हान्स सॉफ्ट कम्प्युटिंग. अच्छा, okay. अँड कम्प्युटर आर हॅव्हिंग ओनली द बेसिक SC वर्जन.
ओके. कारण मला तेच विचार कारण जर आयटीचं सॉफ्ट कॉम्पिटिशन मॅच होईल असेल तर मी तो बॅच घेऊ शकेल ना. That is the elective, right? या It is not entirely matching with comms. ओके. थँक्यू सर. Yes, yes. Avdut Sonawne, any doubt? Varun, Ismail, Vishal, Girish, Krupali, Nitin, Mimona, Harsh, Bhanushali, Viraj. Shall we conclude with today's session then? Okay, stay safe, stay healthy. Let's meet next Friday, same time. Ghanshyamji, we can conclude. Thank you. Thank you, sir. Thank you.